सभी को राम राम, जय श्री महाकाल. This is Renu Mangtani from the platform of Ankakshar Miracles, which is the Institute of Occult Sciences, Spiritual Activities and Research. And today we have Vinu Mandirata ma'am as a guest on the show of Ankakshar Miracles. She is one amongst the 108 co-authors of the anthology books titled as My Marriage Bliss versus Curse and Seven Lee of Life. And this is Renu Mangtani. I had been in the banking industry for about 6 to 7 years, a youth icon by Governor of Maharashtra, influencer, researcher, and much more. So, before we start, we'll take the blessings from the God and we'll begin this beautiful conversation. Karpura Gauram Karunavataram Sansar Saram Bhujgendra सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि. भवं भवानी सहितं नमामि. तो सावन. Wow, what a melodious start. यस, थैंक यू सो मच मैम. सावन अभी चल ही रहा है तो इसे बिल्कुल। बिना बोले हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते, तो बोलिए नमः पार्वती पते हर 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 महादेव. महादेव की विनय जय। जी, कैसी है आप? बिल्कुल बढ़िया, आप सुनाए। ऑल वेल। ऑल गुड गुड हेयर. और मैम का बर्थडे मंथ है, सो बिफोर वी स्टार्ट टू दिस ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन विथ वेरी ब्यूटीफुल सोल मिसेस वेनु मेंदिरता, आई वुड लाइक टू शेयर विथ माय लवली ऑडियंसेस आउट हेयर that it's her birthday today, and let's wish her happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Vinu ji. Happy थैंक यू birthday सो to मच, यू you. मेड माय डे, थैंक यू सो मच। सो अंगाक्षर मेरेकल्स टीम की तरफ से एक और सरप्राइज मैंने किया है, वो मैं भी आपको बिल्कुल दिखाती हूँ. हमारी मैगजीन है अवेलेबल ऑन मैक्सटर, एंड ये आप देख सकते हैं. ये इनसाइड कवर पेज हमने मैम के लिए फीचर किया है. दिस इज अ बर्थडे सरप्राइज. ये इनके लिए भी सरप्राइज है, इन्हें पता नहीं था. मैंने सोचा था कि जब हम रिकॉर्डिंग करेंगे तब मैं दिखाऊंगी. होप शी लाइक्स दिस इनसाइड कवर पेज. सो थैंक मैम, यू हाउ सो इज मच, इट इट? इज लवली। so many forms of me, there are different phases of my life. Thank you so much, it's lovely. Yes, thank you so much. And before we proceed, we'll see more about ma'am. Talking about her, she is a tarot card reader. I hope, ma'am, the screen is visible to you. Absolutely visible, Yes. yes. Talking about her, she is a tarot card reader, numerologist, dowsing expert, crystal healer, fortune teller by dice, life coach, manifestation coach, NLP practitioner. And now I'll share with you all. This is a beautiful quote that we have taken out from our article. It says, marriage is an album of both good and bad times. There is no rule book for a blissful marriage, but putting in efforts can make it wonderful. And this is the beautiful book cover, Seven Lee of Life. This book has more than 2000 points in it, talking about learning, earning, and expectation. And this is, she's holding both the beautiful books. You can see how happy she is. And now I'll share with you all the cover of My Marriage Bliss versus Curse. And here it is. And now our book Mobile Addiction, which is authored by me and my husband Abhishek Chitransh, who is the founder and CEO of Ankakshar Miracles, an expert master numerologist. And for paid consultations in terms of health, career, growth, you all can relationships, you all can reach out to us. And our YouTube channel is Ankakshar Miracles. Facebook page is also Ankakshar Miracles. And this book is basically, it provides you 21 simple techniques to remove और reduce मोबाइल एडिक्शन इन चिल्ड्रन और स्टूडेंट्स एंड अडल्ट्स. एक ऐसा टॉपिक है जो कह सकते हैं कि चल रहा है, मतलब इतना इस तरीके से लोग मोबाइल का यूज कर रहे हैं. मैं कह सकती हूँ कि यूज से ज्यादा मिसयूज हो रहा है. सो आपको इसमें एक न्यूमरोलॉजिकली बेस्ड मतलब कह सकते हैं कि टिप्स मिलेंगे बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ. एक कस्टमाइज डेट ऑफ बर्थ हम कह सकते हैं कि आपको इसमें टिप्स मिलेंगे. और आइए अब बात करते हैं हमारी करंट एंथोलॉजी के बारे में, जिसका टाइटल है अ फैमिली पजल, यूनाइटेड और डिवाइडेड, रूट्स टू विंग्स फॉर पासिंग बॉन्ड्स अक्रॉस जनरेशंस. इसकी
40+ एनरोलमेंट्स हो चुके हैं। एंड इसका भी हम लोगों का माइलस्टोन है, 108 हमें रीच करना है। तो जो भी अभी हमें सुन रहा है, आप लोगों को कोई इसके लिए प्रायर एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। लाइक यू कैन join us, like for in like if you are a life coach, and if you are a homemaker, if you are a chartered accountant, educationist, lawyers, astrologers, psychologists, graphologist, कोई भी हमारे साथ जुड़ सकता है। सो फॉर मोर डिटेल्स आप इस पोस्टर को भी रेफर कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए, आइए, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। आज मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी है हमारे साथ जिनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे। शी हैज बीन अ टीचर, then turned to an industrialist, then from there moved towards being a homemaker and did her parenting journey in growing kids, and now to the journey of occultist. So Vinoji, my first question to you is that how this inspirational journey started, and today you are a successful woman entrepreneur. Can you share this wonderful journey with our lovely, lovely audiences out here, and so that they can get inspired and believe that they are also not less than anyone else? Over to you, ma'am. Thank you so much. First of all, thank you for inviting me here. It's a lovely platform. And yes, you said it very right. I felt so good holding those two books in my hands. I never thought that I'll be a part of an anthology book, I'll be a co author. Since childhood, I was a good orator. I could speak out, I could just speak out my expressions to the best. I never thought I'll write them. So, yes, Ankakshar Miracles, your platform, you encouraged us, you motivated us, and then I'm proud of that. Thank you so much. My journey, there have been so many different phases since childhood till today. So many paths, so many days, so many jobs to be done, so many roles to be played as a daughter, as a wife, as a mother, and for my own self. I wanted to do something. I never wanted to sit idle. So I started, I was working, before marriage, I was working in a corporate industry. Then I got married to Gwalior. Unfortunately, we do not have that corporate culture in Gwalior. At that time, it was not there. So the first option, the best option was working in a school. I had worked in a school for around 10, 12 years. And then I was told that no, we need you at home. We need your support in our own business, not somewhere else. I left the job, joined my husband, looking after his business, looking after so many things. Then came the time when my kids needed me. They were growing, they had their education. So I was like, okay, this is me as a mother, that is my topmost priority. I left everything and started looking after them. Now, what next? There was a vacuum. They're grown and they've gone away, they've flown away to their places. What to do? Then I started my own passion. At this age, I wanted to do something for myself, and I entered occult. And then I met Abhishek sir. I've done so many courses from him. And then there was no looking back. My journey kept on growing and growing. So that's really inspirational that you have enjoyed your every phase of life. You have learned a lot Yes, I and have. you're still learning, and it's unstoppable. So women's are unstoppable. You have proved it. और इसी के साथ बताना चाहूंगी, वेनु जी, हमारे एंथोलॉजी बुक आई थी वुमेन एम्पावरमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, जो कि 51 को ऑथर्स के साथ थी। मैम उसकी भी पार्ट रह चुकी हैं। Yes. मैम के हाथ में बुक्स है। मैम, क्या आप ऑडियंस को शो कर सकती है? Bilkul, I have this seven Lee of my life, seven Lee of life. Then वाह। I have women empowerment. I was a part of marriage bliss versus curse also. And I'm so happy the topics chosen by you were always so heart touching. You know, they're the normal day to day routines, things which impact us, which affect our life. And writing about them was really, really very good. I enjoyed it. एंड दीज आर रियल लाइफ एग्जांपल्स वुमेन्स के लिए Actually, देखो। these are, yes. Especially एग्जैक्ट। if I talk about marriage, bliss versus curse, there's so many people. They have different opinion. They have this different perspective about their marriage. I'm not saying that everyone is getting 100 on 100 in their marriage. Definitely, there are tough and soft parts. But writing them and reading everyone's experience, it is like a new learning. वो ऐसे लग रहा था कि बुक को रीड करके आज भी ये लग रहा है कि लुकिंग एट द मूवी कुछ अच्छा अच्छा हम लोग ऐसे पढ़ रहे हैं। कुछ 108 सस्पेंसेस 108, है, रियल yes. लाइफ स्टोरीज है उसके अंदर। सो वी एंड हैड रेणु बीन जी, रियली मान लीजिए एंजॉयिंग। मेरा एक्सपीरियंस कुछ और था, आपका एक्सपीरियंस कुछ और था, किसी और ऑथर का एक्सपीरियंस कुछ और था। उन सब एक्सपीरियंसेस को मर्ज करके एक बहुत अच्छी बुक बनी, क्योंकि सबके अलग अलग एक प्लेटर में ही सब कुछ मिला हमें देखने के लिए।
बिल्कुल। और साथ ही मैं मैम को एक और कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगी एंड बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सेलिब्रेटिंग योर सिल्वर जुबली लास्ट ईयर। सो माय क्वेश्चन टू यू इज मैम, हाउ वुड यू डिफाइन थैंक मैरिज यू। in one word, as you have seen so many beautiful and successful years of this beautiful journey? It's definitely partnership. And when I say partnership, no 30/70, no 60/40, only and only 50/50. Because you work together, you share responsibilities together, you support each other, you do everything together. So it's only and only partnership. And one more thing, when we talk about partnership, yes, there are so many things we have to overlook. There are so many things we have to adapt from the other person. So, yes, partnership, giving your 100%. एग्जैक्टली, दैट्स एग्जैक्टली अ करेक्ट वर्ड, पार्टनरशिप। बिकॉज कहाँ भी कहीं भी ऐसा हुआ कि आपकी तरफ से 60 है और वहां से 40 है, तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आएंगे। डेफिनेटली इट हैज टू बी बोथ द वेज 50-50। जब Both दोनों the की ways, तरफ yes. से सेम होगा, दोनों को एक दूसरे की बात सुननी है और समझनी है, जब दोनों समझेंगे तभी वो सही से चल पाएगा। जहां देखिए रेणु जी, अगर मैं ये परसेंटेज। बोलूं कि सिर्फ मैं सही हूँ, वाइफ सही है और हस्बैंड गलत है, या हस्बैंड बोले कि मैं सही हूँ और दोनों में फ्लॉज हैं, दोनों में कमियां बिल्कुल। हैं और दोनों में अपनी अपनी खूबियां हैं, तो खूबियां को देखो और एक दूसरे की कमियों को इग्नोर करो और आगे बढ़ो। बिल्कुल सही बात है। एंड चलिए आगे बढ़ते हैं मैम। मेनी पीपल फोकस ओनली ऑन their रिलेशनशिप विद their स्पाउस एंड ओवरलुक द इम्पोर्टेंस ऑफ गेटिंग along विद ईच अदर फैमिलीज। तो बहुत ही अच्छी सी लाइन आपने ये लिखी है, मुझे पढ़ के बहुत अच्छी लगी। अडेप्टिंग टू ईच अदर्स फैमिलीज इज अ की टू हैप्पी मैरिज, इज समथिंग truly fact, Vinuji, that you are trying to convey with these wonderful lines. So also we have our ongoing anthology too, and that is also titled as a family puzzle, roots to wings for passing bonds across generations. So ma'am, आपको ये टाइटल कैसा लगा, एंड हाउ वुड यू एनकरेज बडिंग ऑथर्स टू एक्सप्लोर ऑन इट एंड गेट सर्टिफाइड एज इंटरनेशनली सर्टिफाइड पब्लिश्ड को ऑथर विद अंकाक्षर मिराकल्स? First of all, congratulations for selecting such a great title, Family Puzzle, and then passing on the roots, bonds to the next generation. It's actually required at this moment. जब मैं आजकल के बच्चों को देखती हूँ, आजकल की शादियों को होते हुए देखती हूँ, तो उन्हें सिर्फ एक दूसरे अपने स्पाउस के अलावा फैमिली से कुछ बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। स्पेशली आई एम सॉरी टू से दिस, लेकिन आजकल की लड़कियों को भी लगता है कि बस जैसे ही शादी हो जाए, आई शुड मूव समवेयर विद माई हस्बैंड और आई शुड हैव अ स्मॉल छोटा सा अपना घोंसला एंड वहां पे जाके मैं रहूं। इट्स नॉट लाइक शादी, इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट। आपका अफेक्शन, आपका कनेक्शन अपने हस्बैंड की फैमिली से आपके कनेक्शन को मजबूत करता है अपने स्पाउस के साथ। एंड नॉट ओनली हस्बैंड, इवन अ हस्बैंड हैज टू क्रिएट अ बॉन्ड विद द वाइफ फैमिली। जब आप एक दूसरे की फैमिली के साथ कनेक्ट होते हैं ना, तो बोलने की बात नहीं है, रोज एक्सप्रेस करना नहीं होता, लेकिन आप दोनों आपस में एक बॉन्ड बहुत क्रिएट करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करते हैं। ही कैन सी दैट यू आर वर्किंग हार्ड फॉर हिज फैमिली, और आई कैन सी दैट ही इज वर्किंग हार्ड फॉर माई फैमिली, विच इज रेयर टू फाइंड, विच इज हार्ड टू फाइंड। लेकिन ये बहुत जरूरी है। और आपका जो टाइटल है फैमिली पजल, रेनू जी, फैमिली सच में पजल है। दे आर लाइक अ मेज। बहुत सारी चीजें जो दिखती हैं एक्चुअली वो होती नहीं है, और जो बाहर दिख रहा होता है अंदर कहानी कुछ और होती है। हम लोग बाहर से देख के बहुत बोलते हैं कि अरे इनका ये वाला बेटा थोड़ा खराब है, थोड़ा गुस्से वाला है, या इनका ये बेटा ज्यादा केयर करता है, इनकी बेटी बहुत अच्छी है, या वी डू नॉट नो व्हाट इज गोइंग इंटरनली इन द फैमिली। फैमिली के अंदर बहुत सारे पजल्स होते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हिडन होती हैं, अनदेखी होती हैं, जो शायद लोगों को नहीं मालूम, और उनका पर्सपेक्टिव बिल्कुल डिफरेंट है इसके बारे में। लेकिन वो फैमिली के अंदर जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है ना, वो जरूर दिख रही है। आज मैं अपनी फैमिली में अपने पेरेंट्स को, अपने इन लॉज को, अपने हस्बैंड को, अपने बाकी हस्बैंड के सिबलिंग्स को किस तरह से उनके साथ रिएक्ट कर रही हूँ, किस तरह से उनके साथ बिहेव कर रही हूँ, ये मेरी आने वाली जनरेशन जरूर दिख रही है। और मुझे उन्हें वही वैल्यूज पास करनी है जो वैल्यूज मेरे में है। तो एज अ पेरेंट, एज अ वाइफ, एज अ मदर, एज अ डॉटर इन लॉ, एवरी रोल, इट इज माई मॉरल ड्यूटी टू टेल माई किड्स कि व्हाट हाउ रिलेशनशिप हैज टू बी हैंडल्ड।
एग्जैक्टली बिल्कुल सही कह रही है मैम आप बात। बिकॉज क्या होता है ना, जो आपने ये बात बताई ना कि कभी किसके बारे में कह रहे थे कि इसका ये बेटा अच्छा है, इसका मतलब या इसके फैमिली में ये चल रहा है। सी ये एक बात जिसने समझ ली ना कि सोसाइटी का काम है बोलना, आप अपना जो है गुड एंड बैड देखो और अपने फैमिली में क्या चल रहा है वो देखो। आप अच्छा करोगे तब भी सोसाइटी को प्रॉब्लम होगी, आप बुरा करोगे तब भी सोसाइटी को प्रॉब्लम होगी, इसलिए लेट इट बी, लेट देम टॉक। आप अपने पजल्स आप अपनी फैमिली में देखो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। एक्चुअली बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है रेनू जी, मैंने बहुत लोगों को, स्पेशली यंगस्टर्स को, आज के, आई एम सॉरी, मैं बार बार आज के यंगस्टर्स का इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि ना शायद उनको देखिए उनकी गलती नहीं है, हम लोग बहुत जल्दी बहुत कम एज में ना उन्हें पढ़ने के लिए बाहर भेज देते हैं जहां वो अकेले रह रहे होते हैं। तो शायद अकेले रहते रहते या अपनी स्ट्रगल्स को अकेले झेलते झेलते वो इस फैमिली बॉन्ड को शायद भूल ही जाते हैं, एडजस्टमेंट्स को शायद भूल जाते हैं। तो उन्हें ये लगता है कि मैं, वाई शुड आई डू दिस। तो यू गिव योर बेस्ट एंड डू नॉट टेक केयर अबाउट कि बाकी लोग क्या कहेंगे या कोई और कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यू हैव टू गिव योर बेस्ट। आप यहाँ पे आए हो, अपना रोल प्ले करो। सी एवरीवन इज प्लेइंग देयर ओन रोल्स, कर्मा के अकॉर्डिंग सबको रोल दिए गए, जस्ट प्ले योर पार्ट एंड यू हैव टू गो बैक। जहां से आप आए हो, जहां से आए हो वहीं आपको वापस जाना है, टू दैट लॉर्ड, टू दैट स्पिरिचुअलिटी, टू दैट वन पावर। वन पावर एक्चुअली। एग्जैक्टली। सो मैम, क्या आपको लगता है कि कोई फॉर्मूला है सक्सेसफुल मैरिज के लिए? देखिए रेनू जी, एज सच देर इज नो फिक्स्ड फॉर्मूला फॉर अ सक्सेसफुल मैरिज। यू नो मैरिज इज, वी डोंट गेट इट, वी हैव टू बिल्ड इट, ब्रिक टू ब्रिक, स्टेप टू स्टेप। लेकिन फिर वही बोलूंगी कि क्योंकि हमारी नेक्स्ट जनरेशन को सब कुछ बुकिश लैंग्वेज में समझ में आता है, तो यस देयर इज अ फॉर्मूला। इमोशंस प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस पार्टनरशिप प्लस हार्ड वर्क, एंड how do you play your role in a tough time. It all, you have to add on everything to get a beautiful and blissful marriage. एग्जैक्टली exactly। जहाँ ये सारी चीजें जैसे जैसे आपने बताई, इमोशंस, पार्टनरशिप, जब ये सब इकट्ठी आ जाएंगी तो डेफिनेटली अच्छा ही चलेगा मैरिज। और एक मतलब कैसा है कि हमें खुद बना के चलना है। हम सोचते रहेंगे कि अरे इसने ऐसे कह दिया, ये इस तरीके से होना चाहिए, हर कोई सजेशन देता रहेगा, जस्ट लिसन टू देम। बट आप अपने हिसाब से करो, बिकॉज यू देखिए नो रेणु जी, बेटर योर मतलब कि इतने आपको क्या सालों करना है। में शायद एक तजुर्बा मुझे बहुत अच्छे से हुआ है कि हर दिन एक जैसा नहीं रहता। हो सकता है कोई दिन ऐसा हो, या जब मैं नई शादी हुई थी तब आपकी लाइफ बहुत गुडी गुडी होती है क्योंकि आप एक अलग फेज में होते हो। जैसे जैसे आपकी शादी ग्रो करती है ना, वैसे वैसे वो प्रॉब्लम्स, वो इश्यूज, वो सब चीजें भी ग्रो करती हैं। हाउ यू हैंडल देम। जैसे सोना होता है ना, तप के सोना निखरता है, जितना उसको आप जलाओगे उतना वो निखर के आएगा। तो बिल्कुल शादी भी सिर्फ गुडी गुडी नहीं है, उसको भी तपना और जलना उतना ही जरूरी है, उतना ही इंपॉर्टेंट है उसका, उस आग में जाना, ताकि वो एकदम ब्राइट शाइनी ग्लिटरी गोल्ड बाहर आए। बट ये प्रॉब्लम्स भी जो है ना, तो उससे एंड ऑफ द डे ये नहीं होना चाहिए कि यू बोथ फाउट एंड देन स्लेप्ट। उस फाइटिंग को खत्म करके दैट सोना। इज वॉट आई हैव रिटन इन माई बुक। यस। मैंने अपनी दादी नानी को हमेशा कहते सुना था कि नेवर गो टू बेड एंग्री, नेवर गो टू स्लीप एंग्री। आपकी कितनी भी लड़ाई क्यों ना हो जाए। मैं आपको बताती हूँ, एक टर्म आजकल बहुत चल रहा है, स्लीप सेपरेशन, स्लीप डिवोर्स। आप सुन रहे होंगे, ये कॉर्पोरेट सेक्टर में आजकल बच्चे बहुत यूज करने लगे हैं क्योंकि उनके सुबह से रात तक के कॉर्पोरेट जॉब्स हैं, उन्हें सुबह उठ के जल्दी जाना है। तो मुझे बहुत हैरानी हुई है सुन के कि उन्होंने ये एक सेट किया हुआ है पैटर्न कि मंडे टू फ्राइडे हम अलग बेडरूम्स में सोएंगे, सैटरडे संडे हम साथ सोएंगे। व्हाट नॉनसेंस। हम्म। आप किस लिए साथ सोते। मेरी बुक में मैंने ये भी लिखा है कि ओनली फिजिकल इंटीमेसी इज नॉट द एंड मोटिव ऑफ एंड गोल एग्जैक्टली। ऑफ स्लीपिंग इन द सेम बेडरूम। यू हैव टू शेयर। आप बात भी नहीं करते, शायद हम इतने थके हुए हैं कि हम सब सो जाते हैं, लेकिन यस वी आर टुगेदर। कभी भी मैंने अपनी दादी को हमेशा ये बोलते सुना था, कभी नाराज होके नहीं सोना। बिल्कुल आई हैड माई शेयर ऑफ फाइट्स, आई हैड, ऐसा नहीं हुआ था कि मेरे घर में कभी आर्ग्यूमेंट्स नहीं हुए थे, लड़ाई नहीं हुई थी। आई मेड इट अ पॉइंट कि चाहे रात के 2 बज जाए, मुझे उसे रिजॉल्व करके ही बिल्कुल सोना है। राइट। एंड माई हस्बैंड वाज लाइक सुबह बात करेंगे, ऐसे नहीं अभी बात करेंगे। आई हैव टू एंड इट, आई वांट टू स्लीप पीसफुली। तो जो ये अब आजकल बहुत नए नए टर्म्स आ रहे हैं, स्लीप डिवोर्स, क्या ये एक अच्छी शादी को स्ट्रांग बना पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं बना पाएंगे। इसी वजह से तो रेशो बढ़ रहा है फेल्ड मैरिजेस का। एक्चुअली यस। थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, थोड़े से फाइनेंशियल क्राइसिस आए, तो आपने एक दूसरे पे ब्लेम करना शुरू कर दिया। आजकल तो जब लड़कियां कमाने लगी हैं, तो मैंने ये भी सुना कि हमने अपने ना एक्सपेंसेस आधे, हम एक अकाउंट में इतना इतना पैसा डाल देते हैं दोनों, उसी को खर्च करते हैं।
अरे कार ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, इट्स ऑल योर्स, व्हाई डोंट यू कंबाइन इट? आपके घर में 10,000 आ रहा है, 10 लाख आ रहा है, व्हाई डोंट यू कंबाइन इट? रेणु जी, मैं बहुत सारे लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि आजकल की लड़कियां सरनेम चेंज नहीं करना चाहती। 2 सरनेम्स, इसका मतलब आपने कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली उस नए नाम को अडेप्ट ही नहीं किया। कहीं ना कहीं देखिए, क्यों ये कन्यादान होता था, क्यों सरनेम चेंज किया जाता था, क्यों? आप इसके पीछे के लॉजिक को समझिए ना। लेकिन सिर्फ डॉक्यूमेंट के हैजल से बचने के लिए लड़कियां सरनेम चेंज ही नहीं करना चाहती। बात तो सही है। सॉरी इफ आई एम डेफिनेटली। गेटिंग एग्रेसिव, लेकिन ना नो नो मैं नो। आपको सच बताऊं रेणु जी, आई एम रियली वेरी कन्वेंशनल व्हेन इट कम्स टू दिस थिंग। सही बात है, और बहुत लोग सीखेंगे भी, भले ही कितनी भी हमारी जो भी कन्वर्जेशन होगी, डेफिनेटली जो भी सुनेगा बहुत कुछ सीख के जाएगा। बिकॉज 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है आपके पास, और ईच डे जैसे देखिए, आपने बहुत बताया सारे कि। क्लाइंट्स आते हैं रेणु जी, बहुत सारे बच्चे आते हैं, यंगस्टर्स की हमें ये क्लैशेस हो रहे हैं। जब मैं उनसे उनके नेम डिटेल्स मंगाती हूँ ना, मेरा पहला क्वेश्चन ही यही होता है कि आपने नाम चेंज क्यों नहीं किया? अरे मैम, पासपोर्ट पे था, डॉक्यूमेंट पे था। तो आई सेड व्हाट इज मोर, व्हाट इज योर प्रायोरिटी? आपकी प्रायोरिटी आपके डॉक्यूमेंट्स है कि आपकी प्रायोरिटी आपकी मैरिड लाइफ है? बिल्कुल सही बात है मैम, बहुत बड़ी बात कह दी आपने आज। नॉट एट तो ऑल। आइए मैम से जानते हैं, मैम अगले 5 साल में हम कहाँ देख रहे हैं विनू जी को। वीनू जी को अगले 5 साल में कुछ और सीखा हुआ, कुछ और पढ़ाई करते हुए, क्योंकि इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। एक अच्छे ह्यूमन बीइंग के तौर पे देखते हैं। यस, डेफिनेटली आई विल ग्रो प्रोफेशनली आल्सो। देयर इज नो एंड टू ऑल दीज थिंग्स, एंड आई वांट टू बी a more mature, a more humble person, a more dedicated person, dedicated towards my family, dedicated towards society. दैट्स रियली इंस्पिरेशनल, और आप इन्फ्लुएंसर भी हैं। और मैंने देखा है कि आप बहुत ही वैल्यूएबल मैसेजेस सोसाइटी के साथ शेयर कर रही हैं, जैसे कि आज भी आपने किए हैं। सो आज हम जानना चाहते हैं कि क्या ये इजी टास्क है टू बी एन इन्फ्लुएंसर, व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू कम अक्रॉस। सो दिस वुड बी समथिंग बैक ऑफ द पिक्चर, बिकॉज लोगों ने हमेशा आपको आगे देखा है। और आज हम पर्दे के पीछे की कहानी के बारे में जानते हैं मैम आपसे। थैंक यू सो मच। बहुत जरूरी था ये पूछना, ये क्वेश्चन। आई वुड लव टू आंसर इट। इट इज नॉट एन इजी टास्क। व्हाई? बिकॉज आई वांट टू डू एवरीथिंग विद द ऑथेंटिसिटी। कई बार हम लेटेस्ट ट्रेंड्स को देखते हैं, मुझे बहुत दुख होता है। जैसे अभी राखी आ रही है, तो आज रक्षाबंधन से 4 दिन पहले सोशल मीडिया पे सब इन्फ्लुएंसर शुरू हो गए। राहु काल, भद्रा काल, ये काल, वो काल, ये ना करें, वो ना करें। तो मुझे लगता है कि मुझे ये फियर गेम करके अपने व्यूज नहीं बढ़ाने हैं। मुझे ट्रेंड को फॉलो करके अपने व्यूज नहीं बढ़ाने हैं। क्या एक बहन किसी भी समय अपने भाई को राखी बांधते टाइम उसे दुआएं नहीं देगी, आशीर्वाद नहीं देगी, खुशी से नहीं बांधेगी? क्या सबके लिए पॉसिबल है उस राहुल काल को? अच्छा, आप और मैं एक इंडियन फैमिली में, ज्वाइंट फैमिली में हम लोग दोनों, हमारी शादी हुई है। अगर मुझे आज अपने भाई को राखी बांधने जाना है, तो मेरे हस्बैंड की बहन को भी तो राखी बांधने आना है। बिल्कुल। सेम टाइम पे या तो मैं सैक्रिफाइस करूंगी या वो सैक्रिफाइस करेंगी, दोनों का करेक्ट। मन उदास रहेगा। एक टाइम मैं जाऊं, एक टाइम आप जाइए। तो क्या ये पॉसिबल है कि राहु काल में ही आप चली जाएं और राहु काल में ही मैं चली जाऊं? ना। किसी एक को तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मैं किसी भी टाइम जाऊं, चाहे रात में 10 बजे राखी बांधने जाऊं, पर मैं जब भी राखी बांधूंगी अपने भाई को प्यार से राखी बांधूंगी। और दिल से कभी होता भी है ये सब। उस दिल से होता है, कभी भी उसका कोई साइड इफेक्ट, कोई नेगेटिव इफेक्ट कभी नहीं आएगा। तो देर इज नो राहु काल, भद्रा काल। एक और आजकल बहुत फेयर गेम चलने वाला है, चल रहा है। जब एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ था, जो कि एक बहुत दुखद हादसा था, बिल्कुल। रियली सॉरी फॉर दैट, मतलब बहुत गलत हुआ था वो। उसके बाद मैंने देखा कि मीडिया, सोशल मीडिया पे एक भीड़ सी लग गई थी कि ये तो होने वाला था, मंगल का साल है, राहु है, केतु है। आप क्यों डरा रहे हैं लोगों को? 26 जुलाई तक बाहर मत निकलिए, 28 जुलाई तक बाहर। देखिए, कुछ चीजें जो होनी है वो आपके और मेरे हाथ में नहीं है। अभी आज ही आप देखें कि कहीं पर बाढ़ आ गई, एक पूरा गांव डूब गया। ये जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, या जो इस तरह के डिजास्टर्स हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। इनका एकदम से फायदा उठा के और अपने लिए व्यूअर्स को इकट्ठे करते रहना, व्यूअर्स की वो बढ़ाना, मुझे लगता है कि ये गलत है। तो जब मुझे यहाँ पे लगता है कि मुझे ऑथेंटिसिटी के साथ कुछ मैसेज शेयर करना है, वो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। कई बार मेरी टीम के लोग मुझे बोलते हैं कि मैम इस पे बनाए एक वीडियो। नहीं, मुझे नहीं बनाना। क्यों? क्योंकि ये चीज, ये मैसेज गलत है। आई डोंट वॉन्ट टू गिव दैट। और सबसे बड़ा चैलेंज है रेणु जी, क्रिटिसिज्म को झेलना। किसी भी वीडियो पे, किसी भी उस पे बी रेडी।
लोग आपकी कही हुई अच्छी बात को नहीं प्रेस करेंगे, लेकिन उसमें अगर उन्हें छोटा सा भी कोई फ्लॉ दिखेगा, वो कमेंट में उसको लिखने से चूकेंगे नहीं। बिल्कुल। मेरा दिया हुआ एक्चुअली आसपास की जो ये दुनिया है ना, ये फियर गेम की वजह से, ये इस सोशल मीडिया की वजह से इतनी नेगेटिव हो गई है, इतनी नेगेटिव हो गई है कि वो पॉजिटिव को देखना ही नहीं चाहते। कोई वो खुश नहीं है उसमें ना, कुछ ना कुछ चुन लेते किसी हैं, की खुश खुशी नहीं से है। कोई खुश नहीं है, किसी और की खुशी से किसी को ग्रो खुश करते नहीं हुए है देखना एक्चुअली, नहीं चाहता है कोई। बिल्कुल नहीं देखना चाहते। सबसे एंड बड़ा बैठे प्रॉब्लम है। सारा दिन हम लोग रील्स को स्क्रॉल करने से कभी भी हमारा भाग्य नहीं सुधरेगा, हमें एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे। लेकिन हो क्या रहा है कि हम दिन भर रील्स देख रहे हैं और दिन भर सोच रहे हैं कोई उपाय यहाँ से। मेरे आसपास बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे पेजेस को फॉलो करते हैं, और वो मुझसे पूछते हैं, वीनू कल हमने ये देखा था, ये करें क्या? तो मैं मुस्कुरा के रह जाती हूँ कि इट्स योर विश, यू हैव टू डू, यू डोंट हैव टू डू, इट्स ऑल योर विश। एग्जैक्टली exactly, और इन्फ्लुएंसर के लिए इतना आसान नहीं होता है कि कंटेंट मेन चीज हमें सोचना पड़ता है, उसके बाद उसे इस तरीके से पोर्ट्रे करना सोसाइटी के लिए कि वो रॉन्ग मैसेज भी ना दे और ना ही ऐसा कुछ हो जिससे सोसाइटी कल को उठ के कुछ कहे। तो इसलिए ये बहुत ही ऐसा जॉब है कि हमें सोच समझ के करना होता है, मेन रेणु चीज जी, एक रील कंटेंट को होता बनाने है। के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत टाइम को आपको वो करना पड़ता है, इट्स नॉट इजी। इनफैक्ट मुझे तो अपने घर में कर्फ्यू लगाना पड़ता है कि प्लीज रूम से बाहर मत आना थोड़ी देर के लिए। तो इट टेक्स टाइम, एवरीथिंग टेक्स टाइम। और कंटेंट, आपका कंटेंट पॉजिटिव हो, आपका कंटेंट स्ट्रांग हो और सही हो, वो ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैम की इंस्टाग्राम पे 50K की फैमिली है मैम, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर इट, और थैंक हम यू विश सो मच, करते हैं थैंक कि यू सो ये मच, इट्स जल्दी ऑल ही योर मिलियंस में विशेस। कन्वर्ट होगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, यू मेड माई डे। ये आपने मुझे एक और अच्छा बर्थडे गिफ्ट दिया है। बिल्कुल, जब बर्थडे हो तो ऐसा मैनिफेस्ट करो, बर्थडे के दिन ही क्या, डेली कुछ ना कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करो तो डेफिनेटली आपके साथ अच्छा ही होगा। इट्स ऑल इन योर थॉट्स एंड आज योर सुबह से आप मुझे एफर्ट्स। बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट दे रही हैं रेणु जी। आपने मुझे पहले आज के दिन ये पॉडकास्ट करना, फिर वो पोस्टर बनाना, अब आपने मुझे ये जो ब्लेसिंग दी है ना 1 मिलियन की, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, आपका डे है, ये स्पेशल आज होना जैसे ही कल होगा। चाहिए। थैंक यू जी। स्पिरिचुअलिटी के बारे में क्या कहना है मैम आपका? स्पिरिचुअलिटी, ये एक टर्म ऐसी है जो आज की डेट में सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड है, सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड है। स्पिरिचुअलिटी मेरे लिए कुछ भी नहीं, सिर्फ अपने अंदर झांकना एक स्पिरिचुअलिटी है। अपने आप को ठीक करना, अपने आप को एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाना, और सब वहमों से और सब चीजों से दूर रहना, सब डर से दूर रहना, ये एक स्पिरिचुअलिटी है। अपने आप को उस डिवाइन पावर से कनेक्ट करना, अपने आप को अपने आप से, कनेक्टिंग टू माई सेल्फ, पूरा इंट्रोस्पेक्शन की हु एम आई, मैं क्या कर रही हूं, मैं सही हूं कि मैं गलत हूं, सिर्फ और सिर्फ ये स्पिरिचुअलिटी है। बाकी सब सिर्फ और सिर्फ रीति रिवाज है, रिचुअल है जो हम कर रहे हैं, वो तो और जो कुछ भी, भी नहीं। जैसे हम लोग फैमिली में हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें करना है, बाकी वो जो पावर है, वो जो शक्ति है, वो तो हमारे अंदर ही है, दैट वो इज हमारे थर्ड आई। अंदर ही है। उसे उस पे यस। फोकस करो, उसे याद करो, उसे रिमेम्बर करो, बाकी सब तो ऑलरेडी इट इज डेस्टाइन्ड जो है वो तो वैसे ही होगा। उसमें हम कितना भी इवन बट कर लेंगे उससे कुछ होने वाला नहीं है, जो कुछ पहले नहीं से होने वाला। डिसाइड है वो तो होके ही रहेगा। और अगर हम सोचते हैं कि ये हमारे साथ क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, हम अपने मन से कितना भी कह ले, लेकिन जो होना है वो तो होके ही रहेगा। नहीं नहीं रेणु जी, उसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ, तो शायद मुझे अपने आप को पूछना चाहिए कि मैं कहाँ गलत थी, क्या मैंने प्रॉपर स्टेप लिए थे, मेरे एफर्ट्स पूरे थे। हो सकता है मैंने ही कमी छोड़ी हो। आज अगर हम अपनी इस बुक की भी बात करें, मैरिज ब्लिस वर्सेस कर्स, मैं ये नहीं कहती कि सबको सबकी लाइफ में एकदम से शादी करते ही मैरिज बहुत वो बन जाती है, बहुत अच्छी बन जाती है। उसमें जरूर कुछ ना कुछ आपके अप्स एंड डाउन आते हैं, पर क्या आपने अपने एफर्ट पूरे दिए? हम अपने स्पाउस को तो ब्लेम कर सकते हैं, स्पाउस की फैमिली को ब्लेम कर सकते हैं, पर आप खुद के अंदर तो झांकिए कि आपने वो पूरा एफर्ट दिए थे। शायद नहीं दिए थे, इसीलिए वो कमी रह गई। बिल्कुल, ये और ये बोथ द वेज होगा। और जो आप जैसे ये आप बात बता रही है, तो देखिए लड़की भी अपना घर छोड़ के आती है, तो वो ये नहीं सोचेगी कि मैं अपने पूरे एफर्ट्स ना दूं, वो भी अपने एफर्ट्स देगी, बट कहीं ना कहीं देखिए है तो इंसान ही, उससे भी गलती हो सकती है। बिल्कुल। बट ये है कि दूसरी तरफ से उस फैमिली को भी समझ के चलना है कि हम उसे पूरा सपोर्ट करें। सी, इंसान है आफ्टर ऑल, किसी ना किसी से गलती हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। किसी से भी हो सकती है। सपोर्ट करना है और अच्छे से चलना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बिल्कुल। सो मैम, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी फ्रॉम योर आर्टिकल 7 ली ऑफ लाइफ? सेवन ली ऑफ लाइफ, इसमें जो मेरी सबसे सबसे अच्छी लर्निंग, और जो मैंने इस बुक से रिसीव या इस आर्टिकल से रिसीव किया ना, दैट इज रिस्पेक्ट। इफ यू वांट रिस्पेक्ट फ्रॉम मी, यू हैव टू रिस्पेक्ट मी।
अदरवाइज डू नॉट। बिकॉज मैंने अपनी लाइफ में ये देखा है कि जब आप किसी को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट और रिगार्ड देते हैं, बहुत ज्यादा प्यार भी फॉर दैट मैटर देते हैं ना, दे स्टार्ट टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड। रिलेशनशिप, सेकेंड थिंग इज रिलेशनशिप। नाउ आई एम वेरी श्योर अबाउट इट कि मैं जो रिश्ते निभाऊंगी वो शायद अपनी चॉइस और अपने ट्रस्ट के ऊपर निभाऊंगी। अब मैं वो रिश्ते नहीं निभाऊंगी जो मैं ऊपर से लिखवा कर लाई हूँ। क्योंकि रिश्तों को निभाते निभाते कहीं पर भी आपको अगर अपने आप को ताक पे रखना पड़े, अपना 100% देने के बाद अगर आपको रिलेशनशिप में वो 100% ना मिले, देन देयर इज नो पॉइंट। वो एक बर्डन से लगने लग जाते हैं। सो द ओनली थिंग आई आई टेल माई ऑडियंस फॉर दैट ऑल्सो कि रिस्पेक्ट और लव, ये दो चीजें ऐसी हैं, आप जितना देंगे उतना आपको मिलेगा। और सिर्फ यही एक फॉर्मूला है जो आपके रिलेशनशिप को किसी के भी साथ स्ट्रांग बनाएगा। एंड द लास्ट थिंग इज आई कैन नॉट प्रिटेंड हु व्हाट आई एम नॉट। आई कैन नॉट। अगर मैं हूं तो मैं बाहर भी ऐसी हूँ, शायद मेरा बोलना बुरा लगे, शायद मुझे किसी का सुनना बुरा लगे, बट आई कैन नॉट प्रिटेंड। सो दैट इज दीज आर द थ्री थिंग्स। और मैंने शायद ये अपने आर्टिकल में भी मेंशन किए हैं, रिस्पेक्ट, रिलेशनशिप और प्रिटेंडेंस। ये तीन चीजें मैं नहीं कर प्रिटेंड सकती। वाली बात सही भी है मैम, क्योंकि बहुत लोगों से नहीं हो पाता है, क्योंकि जो जैसा है वो वैसा ही हो तो अच्छा ही है, क्योंकि वो दिखावा हो नहीं पाता है। वो नहीं, अच्छे देखिए अगर हैं मुझे तो मुझे अच्छे कोई हैं। चीज चाहिए तो मुझे चाहिए, मैं कहूंगी हाँ मुझे चाहिए। मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे नहीं चाहिए और फिर यूनिवर्स मुझे कहीं से दे दे। एक छोटा सा इंसिडेंट चलते चलते इस पे शेयर करते हैं। एक बच्ची थी 13 साल की, उसका बर्थडे था, उससे पूछा जा रहा था कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। बट डीप इनसाइड शी वांटेड कि पेरेंट्स उसके लिए कुछ सरप्राइज प्लान करेंगे, कोई बर्थडे पार्टी प्लान करेंगे। पेरेंट्स को लग रहा था कि अरे यार बच्चे को नहीं चाहिए, ठीक है या कुछ भी। अब आपको जो चाहिए आप यूनिवर्स को बताएं या लोगों को बताएं ना कि मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करती हूँ, मुझे आपसे ये एक्सपेक्टेशंस है और आप प्लीज मेरे हिसाब से ये कर दीजिए। देन ओनली इट्स अ टू वे ट्रैफिक। तभी मुझे, राइट। आई कैंट प्रिटेंड कि नहीं नहीं मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप जैसी हैं बहुत अच्छी हैं। बट नो, देयर आर एक्सपेक्टेशंस। तो ये प्रिटेंड करने का जो हम लोग करते हैं ना, इसको खत्म कर दें तो रिलेशनशिप बहुत स्मूथ हो जाएंगे। बिल्कुल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बताई मैम, बहुत अच्छा लगा। और लास्टली आपसे जानना चाहेंगे आपकी जर्नी कैसे रही अंकाक्षर मेराकल्स के साथ, और आपकी क्या फीलिंग थी जब आपको दोनों एंथोलॉजी बुक्स यू रिसीव दोज गुडीज एंड पर्सनलाइज्ड गुडीज इन हैंड। थैंक यू सो मच, दैट वाज लवली। और अंकाक्षर मिरेकल्स के साथ मेरी जर्नी बहुत ही बेहतरीन रही। मैंने अपनी न्यूमरोलॉजी की जो शुरुआत है वो अभिषेक सर के साथ करी थी। ग्राउंड लेवल से फ्रॉम द डे वन उनके साथ सीखना शुरू किया था। और बेसिक्स किए, एडवांस किया, उसके अलावा जिंदगी के बहुत सारे प्रोफेशनली बहुत सारे और गुण सीखे, बहुत सारी चीजें सीखी। शायद बहुत कुछ मेंटर्स ऐसे होते हैं जो टू द पॉइंट बात करते हैं और बात खत्म कर देते हैं, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें साझा की। कभी भी नॉलेज को बांटने से। और मैं उनसे हमेशा कहती थी कि आप सागर हैं, जितना मर्जी गोता लगा लो वो खत्म ही नहीं होता है। तो कितना आपके में से निकाले, उनसे बहुत मोती हमने निकाले हैं। थैंक यू सो मच, इट हैड बीन, आई मीन इट वाज अ वंडरफुल। और जिस दिन मुझे अपनी बुक्स मिली थी, दैट वाज अ प्राउड मोमेंट, दैट वाज अ हैप्पीएस्ट मोमेंट। आई वाज लाइक ऑन क्लाउड नाइन। शायद मैंने जो अपनी आपने मुझसे फोटोग्राफ मांगी थी, जो फोटोग्राफ शेयर करी है ना, तो मुझे फोटोग्राफ लेते टाइम somebody was telling कि अरे ये मतलब, आई सेड आई कैन नॉट स्टॉप माई स्माइल, मैं नहीं रोक सकती, इट आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। सो इट वाज लवली। और जब बुक्स आई, बुक्स के साथ जो गुडीज आए, दे वर सच थॉटफुल। वो जो एज अ ऑथर, एज अ राइटर हम उसे यूज कर सकते हैं। एंड जब हम यूज करेंगे तो हम शायद मोटिवेट होंगे कि अरे ये मेरी बुक के साथ के थे, मुझे एक और बुक लिखनी है, मुझे एक और आर्टिकल लिखना है। सो बिल्कुल, थैंक थॉटफुल। यू सो मच मैम इतने सारे लव और प्यार के लिए। और जो सर के बारे में कहा, अभिषेक सर के बारे में, एंड मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी कि वो कहते हैं ना, वो एक कहना है कि एक सक्सेसफुल औरत के पीछे एक आदमी का हाथ मतलब होता है, ऐसा ऐसे ऐसे ये कहावत है। तो सेम ही हैज ऑल्सो सपोर्टेड मी, मतलब मैंने ऐसे सोचा नहीं था कि मैं भी अपनी ये ड्रीम्स जो है फुलफिल कर पाऊंगी, बिकॉज आई एम ऑल्सो फ्रॉम अ कॉर्पोरेट इंडस्ट्री। तो कभी मैं मतलब ऑथर बनूंगी, मैंने ऐसे सोचा था पहले। मैं भी कभी ऐसे ही कहीं अपने फोन के नोट्स बना के उसी में लिखा करती थी। बट आज मेरी बुक्स आएंगी, और हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी कि हमारी बुक्स जो है मुंबई यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ नॉर्वे और
बहुत ही पॉपुलर कॉलेजेस में बहुत जगह पे पहुंची है सेलिब्रिटीज के साथ। सो डेफिनेटली सोचा नहीं था, प्लान नहीं था किया था कि कभी इतना कुछ अचीव कर पाएंगे। सो ही इज द वन, आई एम प्राउड टू से दैट आई एम हिज वाइफ, एंड इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। एंड डेफिनेटली हम लोग बहुत सारी चीजें आगे भी आप लोगों के लिए सरप्राइजेस लाते रहेंगे, और फैमिली पजल में भी हम लोग कुछ सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, और अरे वाह, जल्दी बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। सो तब तक के लिए बने रहिए। और विनोद जी, आज आपसे बात दैट्स करके लवली। बहुत अच्छा और लगा। वेनु जी, जाते जाते आपकी बात से एक बात करना चाहती हूँ, उसे बोले बिना नहीं जाऊंगी। आपने बोला कि अभिषेक सर ने ये बोला जाता है कि एक सक्सेसफुल औरत, हस्बैंड, आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ये कुछ पुराने स्टेटमेंट्स हैं जो उस समय के लिए ठीक थे। इन्हीं स्टेटमेंट्स को मैं चाहती हूँ कि आज मॉडिफाई किया जाए। सिर्फ एक आदमी के पीछे औरत का हाथ नहीं होता, एक औरत की सक्सेस के पीछे एक आदमी का हाथ होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल यही शायद है। मुझे भी अगर मेरे फैमिली का सपोर्ट नहीं हो, हस्बैंड का सपोर्ट नहीं हो, तो मैं क्या कर लूंगी? कुछ भी नहीं कर सकती। एक दूसरे का सपोर्ट जरूरी है। इन्हीं चीजों को शायद आज की जनरेशन वो पुरानी बातों को समझ रही है और चेंज नहीं करना चाहते। हमें टाइम टू टाइम इसे अपडेट करना चाहिए। लोगों को लगता है कि अरे तुमने ये कर लिया, बट हाउ कुड आई अचीव इतने सारे रोल्स को करना जस्ट बिकॉज हमें पीछे से बैक पे सपोर्ट है। देन ओनली वी कुड डू दैट। सो इट्स बोथ द वेज, इट्स वाइस वर्सा। राइट, तभी तो इस स्टेटमेंट को भी चेंज किया। अभी आपने बताया एक सक्सेसफुल औरत के पीछे आदमी। एक सक्सेसफुल औरत के पीछे का बहुत जरूरी है। और ये हस्बैंड्स को या ये आदमियों को, पुरुषों को समझना चाहिए कि इफ इफ अ लेडी वांट्स टू गो आउट एंड डू समथिंग, लेट हर डू दैट। क्योंकि वो जितना, एक कहा जाता है कि जितना आप देंगे उतना फ्लो करेगा और मल्टीप्लाई होके आपके पास आएगा। आज आप अपनी वाइफ को पूरी फ्रीडम दीजिए, पूरा उतना प्यार दीजिए, वो उतनी बार मल्टीफोल्ड होके, मल्टीप्लाई होके आपके पास डेफिनेटली आएगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली मैम। सो वंस अगेन जाने से पहले आपको विश यू हैप्पी बर्थडे, एंजॉय योर थैंक यू डे। सो मच। बहुत कुछ थैंक यू सीखा सो हमने मच। आपके साथ। दिस It वाज was रेनू lovely मंगतानी। talking to you. Thank you so much. थैंक यू सो मच मैम, सेम Thank हियर। you. Bye दिस वाज bye. Bye bye. रेनू मंगतानी विद वीनू मेहंदीरता। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए अंकाक्षर मेराकल्स के साथ। हम जल्दी ही मिलेंगे अगली न्यू को ऑथर के साथ। थैंक यू सो मच मैम। Thank you. Bye bye. Bye.